جب زمین بھوچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا اس کو کیا ہوا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ ہم ہمیشہ سے سنتے اور پڑھتے آئے ہیں کہ دنیا کا یہ نظام جو ایک مقرر دائرے میں چلتا ہے اور چلتا آ رہا ہے، ایک دن آئے گا جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، جسے ہم قیامت کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، انسان ہونے کی حیثیت سے عام طور پر لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر قیامت کب آئے گی، لیکن اس کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ لیکن ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہے، تاکہ ہم قیامت سے پہلے رونما ہونے والے فتنوں سے بچ جائیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسی ہی نشانیاں آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک دیکھتے رہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کی یہ نشانیاں اپنے صحابہ اکرام کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے تھے، کبھی مختصر میں تو کبھی تفصیل سے۔ آپ نے قیامت کی علامت کا بیان کرنے کا اس سے تمام فرمایا ہے۔ اس کا اندازہ آپ مسلم شریف کی اس حدیث مبارکہ سے لگا سکتے ہیں کہ ابو جید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف فرمائے ہوئے اور ہمارے سامنے خطبہ دیا، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ ممبر سے اتر کر ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دیتے رہے، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ نے ممبر سے اتر کر عصر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف فرمائے ہوئے اور خطبہ دیتے رہیں۔ آپ نے ہمیں اس مدعے میں ایسے اہم واقعے کی خبر دی جو ہو چکے ہیں اور جو آئندہ ہونے والے ہیں۔ بس ہم میں سے جس کا حافظہ زیادہ قوی تھا وہی اس تمام واقعات کو یاد رکھ سکا۔ دوستو، اسی طرح سے دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت تک ہونے والے کوئی واقعات نہیں چھوڑا جو ہمیں بتایا نہ ہو۔ جس نے یاد رکھا وہ یاد رہا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ میرے ساتھیوں کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن واقعات کی خبر دی، ان میں سے جن واقعات کو میں بھول گیا، ان میں سے جب کوئی واقعہ رونما ہوتا تو وہ مجھے یاد دلا دیتے۔ دوستو، اب ہم اپنے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اس سوال سے متعلق جواب قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، اور دوسری جگہ فرمایا، اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، تو کہہ دیجئے آپ کو اس سے کیا تعلق، اس علم کی انتہا تو آپ کے رب کے پاس ہے۔ اب آپ کو اس سے متعلق ایک حدیث سناتے ہیں۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سب کو خطاب فرما رہے تھے کہ اچانک سامنے سے ایک شخص نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت ہی سفید، بال بہت زیادہ کالے تھے، اس پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ وہ بالکل تھکا ہوا نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ ایک بات یہ بھی تھی کہ ہم میں سے اس کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ حاضرین کے بیچ سے گزرتا ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے دو جانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گھٹنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا لیا اور اپنے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک رانوں پر رکھ دیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو
اللہ کے सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और माह रमज़ान के रोज़े रखो और बैतुल्लाह के हज की ताकत रखो तो हज करो। उस अजनबी ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जवाब सुना और कहा, आपने सच फरमाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो जो इस हदीस के रावी हैं फरमाते हैं, उसकी बात सुनकर हमें बेहद ताज्जुब हुआ कि ये शख्स पहले तो सवाल करता है फिर उसकी तस्दीक भी करता है। इसके बाद उसने सवाल किया, आप मुझे बताइए ईमान क्या है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह, उसके फरिश्ते, उसकी किताबों और उसके रसूलों और क़यामत के दिन को हक जानो और मानो, हर खैर और सह को भी हक जानो और मानो। उसने कहा, आपने सच फरमाया। उसके बाद उस अजनबी ने पूछा, आप मुझे बताइए एहसान क्या है। आपने फरमाया, एहसान ये है कि अल्लाह की बंदगी तुम इस तरह से करो जैसे तुम उसको देख रहे हो, क्योंकि अगरचे तुम उसको नहीं देखते लेकिन वो तो तुमको देख रहा है। उस अजनबी ने फिर सवाल किया, क़यामत कब आएगी, आप इसके बारे में मुझे बताइए। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में फरमाया, जिससे ये सवाल किया जा रहा है वो इस सवाल करने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। फिर उसने कहा, मुझे उसकी कुछ निशानियां ही बता दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसकी निशानी, एक निशानी ये है कि तुम देखोगे कि जिनके पाँव में जूता और तन पे कपड़े नहीं हैं, जो तन दस्त और बकरियां चराने वाले हैं, वो बड़ी बड़ी इमारतें बनाने लगेंगे, इसमें एक दूसरी पर बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, ये बात करके वो अजनबी चला गया। फिर कुछ अरसा गुजरने पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए उमर, क्या तुम जानते हो कि वो सवाल करने वाला कौन था। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल ही ज़्यादा जानने वाले हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिब्राइल थे, तुम्हारे इस मजलिस में इसलिए आए थे कि तुम लोगों को तुम्हारे दीन सिखा सकें। ये हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है। दोस्तों, इस हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर इरशाद फरमाया है कि क़यामत का इल्म ज़ाती तौर पर सिर्फ अल्लाह ताला को ही है। और गौर करने की बात ये है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी निशानियां बता दी हैं। तो ये बात हुई कि क़यामत कब आएगी। क्या आपको मालूम है कि क़यामत किसे कहते हैं? क़यामत दरअसल हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की उस चीख का नाम है जिससे सारी कायनात पर जलजला तारी हो जाएगा। इस जलजले की शुरुआत झटकों से होगी। इस चीख और जलजले की शिद्दत में लगातार तेजी आती जाएगी। आम इंसान और जानवर इससे मरना शुरू हो जाएंगे। हर कोई बस इधर उधर भागता फिरेगा। उस दिन कोई किसी का हाल पूछने वाला ना होगा। यहाँ तक कि ज़मीन और आसमान में कोई जानदार चीज़ जिंदा नहीं बचेगी। ज़मीन फट जाएगी और पहाड़ धुनी हुई रुई की तरह उड़ते फिरेंगे। सितारे टूटकर गिरने लगेंगे। चांद सूरज अपनी रोशनी खो बैठेंगे। आसमान भी टूट फूट जाएगा। सारा आलम तारीक की लपेट में आ जाएगा। इसी तरह से पूरी की पूरी कायनात मौत के आगोश में आ जाएगी। दोस्तों, उस दिन की खबर तमाम अंबिया इकराम ने अपनी अपनी उम्मतों को दी है और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया कि क़यामत अब बेहद करीब आ चुकी है और मैं इस दुनिया में अल्लाह ताला का आखिरी रसूल हूँ। कुरान करीम अल्लाह ताला की नाजिल की हुई आखिरी किताब है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि ए नबी, लोग आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं तो कह दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। आपको क्या खबर, बहुत मुमकिन है कि क़यामत बिल्कुल ही करीब हो। दोस्तों, कहा जाता है कि क़यामत आसमानी आफत की वजह से होगी। जब भी क़यामत आएगी तो वो आसमान की तरफ से नाजिल
हासिल होगी। और आज साइंस भी इस बात को बता रही है कि आखिर क्या वजह होगी कि इस जमीन की तबाही का जो सबब बनेगी। साइंटिस्ट के मुताबिक ये बात सामने आई है कि जमीन पर जो भी तबाही आएगी उससे उसके पीछे की वजह खला यानी कि स्पेस में मौजूद पत्थर है जो इस दुनिया में बहुत तेजी की तरफ बढ़ रहे हैं और स्पेस में लगातार तैर रहे हैं। जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तब ये पत्थर जमीन पर आ गिरेंगे और कयामत आ जाएगी। साइंसदान कुछ अरसे के बाद प्रैक्टिकल करते रहते हैं, जैसे कि साइंसदानों के मुताबिक साल 2029 में FSS नाम का एक चट्टान जो स्पेस में तैर रही है उसकी जमीन से टकराने का अंदेशा है। अब इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। हजार फीट चौड़ा एक ऐसा भारी भरकम चट्टान का जमीन से टकराने का मतलब है सैकड़ों एटम बम के बराबर तबाही, करोड़ों लोगों का मरना और पूरी दुनिया का निजाम बिगड़ना। लेकिन वही कुछ साइंसदानों की बात माने तो इस बात को वो रद्द करते हैं और कहते हैं वो चट्टान जमीन से टकराएगी नहीं, पर इस पर अभी रिसर्च जारी है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक ये चट्टान 13 अप्रैल 2029 को जमीन से बहुत करीब होकर गुजरेगी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि जमीन से टकराएगी या नहीं। लेकिन इसकी खबर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है। दोस्तों, अब हम आपको वो निशानियां बताएंगे जो आने वाले वक्त में आएंगी। लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा कि दीन पर कायम रहने वाले की हालत उस शख्स की तरह होगी कि अंगारों को मुट्ठी में पकड़ रखा हो। दुनियावी एतबार से सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत वो होगा जो खुद भी कमीना हो, उसका बाप भी कमीना होगा। कबीलों के लीडर बहुत मुख्तलिफ, झूठा और भाषिक होगा। बाजारों की रईस ताजिर होंगे, पुलिस की कसरत होगी जो जालिमों का पीठ थपथपाएगी और कम उम्र के लड़के हुकूमत करने लगेंगे। नाप तौल में कमी हो जाएगी, लिखने का माहौल बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन तालीम सिर्फ दुनिया के लिए हासिल की जाएगी। कुरान को गाने बजाने का सामान बना लिया जाएगा, यानी लोग उसे गा गा कर पढ़ेंगे। रिया, शोहरत और मालिक फ़ायदे के लिए कुरान को गा गा कर पढ़ने वालों की कसरत होगी। फुकाह की कमी होगी, उल्मा को कत्ल किया जाएगा। लोगों पर ऐसा वक्त आएगा कि वो सुर्ख सोने से ज़्यादा अपनी मौत को पसंद करेंगे। उस उम्मत के आखिरी लोग पहले लोगों पर लानत करेंगे। झूठों को सच्चा और सच्चों को झूठा जाना जाएगा। अच्छाई को बुरा और बुराई को अच्छा समझा जाएगा। अजनबी लोगों से हुस्न सलूक किया जाएगा और रिश्तेदारों के हुकूक पामाल किए जाएंगे। बीवी की इताअत और माँ बाप की नाफरमानी की जाएगी। मस्जिद में शोर होगा, दुनिया की बातें होंगी। सलाम से जान पहचान के लोगों से ही किया जाएगा, जबकि सलाम हर मुसलमान को करना चाहिए, चाहे हम उसे जानते हो या ना जानते हो। नेक लोग छुप के फिरेंगे और कमीनों का दौर चलेगा। लोग फक्र और रियाकारी का तौर पर ऊंची ऊंची इमारतें बनाकर एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। शराब का और सूद का नाम बदलकर शराब का नाम रमी और सूद का नाम नफ़ा और रिश्वत का नाम हदिया रख दिया जाएगा। उसको हलाल समझा जाएगा। जुआ, गाने बजाने और शराब, जिना की कसरत होगी। बेहयाई के साथ साथ हराम औलाद की कसरत होगी। अचानक से मौत हादसा में मरने वालों की कसरत होगी। लोग बड़े बड़े गाड़ियों की सवारी करके मस्जिद तक आएंगे। उनकी औरतें कपड़े पहनती होंगी, लेकिन लिबास इतना बारीक और चुस्त होने की वजह से वो बरहाना होंगी। उनके सर ऊँटों के कोहनी की तरह होंगे, यानी कि वो बाल इस तरह से बनाएंगे कि कोहान नजर आएंगे। दिखावा, झटक मटक का चाल होगी। लोगों को अपनी तरफ माइल करेंगी। ये लोग ना जन्नत में दाखिल होंगे और ना ही उनकी खुशबू पाएंगे। मोमिन आदमी उसके नज़दीक बंदियों से ज़्यादा गिरा होगा। मोमिन बुराइयों को देखेगा मगर रोक नहीं पाएगा, जिसकी वजह से वो अंदर ही
ہی اندر ڈرتا اور قدرتا رہے گا۔ ان سب باتوں کا ہوتا ہوا دیکھا نہ جائے گا، اور آج ان سب باتوں کا ہوتا ہوا دیکھا جا رہا ہے۔ کسی علامت کے ابھی شروعات ہوئی ہے تو کوئی کافی پہلے سے چل رہی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان علامت نے اپنی انتہائی کو پہنچ جائے گی، تو اسی وقت قیامت کی بڑی اور آخری وقت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ پھر آخری میں سور پھونک دیا جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، چاند ستارے سب ٹوٹ پھوٹ کر گرنے لگیں گے اور ہر انسان مر جائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھی قیامت کی نشانی جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتائی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی سختی سے بچائے اور ہمیں گناہوں کرنے سے بچائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔